इतना होने वाला लगे ना मनोवास वाले भाई कोई आवश्यक नहीं पड़ी तो सारे बंदा
मेरे क्लास के तो एक ही दो जन जुड़े हुए हैं। कुछ नहीं, आज हमारे क्लास कॉलेज से भी ना मीटिंग है। Good morning, students. Welcome to this session. Uh, we'll start in 5 minutes. Hello, good morning, all of you. Hi. लगेगा आगे मांगे
Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Shri Sajil Shah, Dr. Pratik Patel from BRCM College, Mr. Ankur Agrawal, and my dear participants. It is indeed a pleasure to welcome you all on this webinar on career options for management students. Friends, BRCM College organizes variety of programs for benefit of students and society. Right now, we are organizing this webinar on the topic of careers and career options. One of the reason is that career is something
which is one of the most important thing in today's time. If we make a reference to ongoing scenario, we are aware that whole world is passing and suffering from this pandemic called novel coronavirus, and it is creating a lot of problems. But if you see, along with it, there is always economy associated. Whether we are talking about this pandemic or any other kind of pandemic, with it, immediately one thing gets connected, and that is economy. And we have seen what has happened in past 2 months in our country as well. Now, when we talk about economy, what is economy if we see it from economics angle? It is an aggregate of economy of lot of individual families, and economy of individual family depends upon career and career options chosen by individuals. So if we want to shape our economy well, we have to shape our careers well. Present day scenario has brought in one more thing, that is world is changing, and when world is changing, careers are going to get changed. Otherwise also someone has said, only thing constant in this world is change. And that's where if we are planning a career in today's time, we have to embrace change. Change regarding the direction of our value and contributions to society, to the economy. Skills required, second, skills required for us to be in careers, or changing skills requirement as we move from one phase of our life to the other phase of life, means one level of our career to the second level of career. So there are a lot of changes which are going on, but it's not just changing from our side, there are macro changes. And pandemic has brought in lot of changes in our society, and it is being forecasted that careers in future are going to get changed. So when we are moving from these stages, we thought, why not to guide our students and students from region across the country to help them understand how to design, how to prepare, and how to move forward in their careers. Endeavors have been our partner in helping students to understand a variety of things. And that's where we organize this program in partnership with Endeavors. And Mr. Sajil Shah of Endeavors Career has kindly consented to help our students to understand what is going ahead and what you should be doing. Welcome, Mr. Sajil Shah. We are very happy to have you. Thank you, sir. To help our students, not just students. Today, people have joined from entire South Gujarat and even Saurashtra. There are students from BRCM, there are students from DRB College, students from Atmanand College, and many other colleges of Surat as well as South Gujarat. We have also got participation from industry. So what we are going to talk about is going to go to a very broad, far-reaching audience. So they are having a lot of expectation from you. We welcome you, and I hand over system to you. Please resume your presentation. Thank you so much, sir. Thank you so much. That was a great introduction. And I'm really honored to be here. Dear students, dear faculty members, academicians, and representatives of industry. This is a very interesting and important discussion that we are going to do today. All right. So, Jayesh sir, thank you for inviting me. Pratik sir and all the other faculty members. I want to start with what sir already spoke about, right?
So let's start with the COVID pandemic. Okay. कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हुआ क्या था? So what I will try to use both the languages, Hindi and English, and if required Gujarati also, so that I can reach out to all the students, right? क्या हुआ था? कोविड जब शुरू हुआ, especially in India, around March, we understood there was one day of Sunday which was closed down, right? And it was expected कि 8-10 घंटे 14 घंटे अगर बंद रहेंगे तो कोविड का स्प्रेड हम लोग रोक पाएंगे. That extended to a lockdown, full-fledged lockdown. Second lockdown was more like a curfew. ठीक है. Fourth lockdown खत्म होने के बाद आज हम अनलॉक के फेज में जहां पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है और सबको ये समझ में आ गया है, which we as faculty members have been talking about for 2 months now, that COVID situation is here to stay. It is not something which is going to get over. So पहले तो हम सबको, professionals, students alike, we have to understand that this situation is here to stay for a long time. I'm not trying to scare anybody. I'm not trying to spread any fear, but let's understand this because हमको उसको handle करना सीखना होगा. And that includes when you're talking about building careers as well. So when you're trying to build a career, things have changed. ठीक है? Companies and industries have changed in these 2 months. I'll talk about education industry, just to give you an example, the industry that I belong to, right? The formative changes which happened, that education was going from online, offline, or a classroom kind of a setup to online. And people used to say कि यार 20 साल तक तो नहीं होने वाला है, 25 साल तक नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, सबके पास वाईफाई नहीं होता, बच्चे रेडी नहीं है, प्रोफेसर्स रेडी नहीं है. आज ऑनलाइन लेक्चर्स हो ही रहे हैं. Students are taking online lectures. Professors are delivering it. Colleges are at least discussing it. कि एक सेमेस्टर करें नहीं करें, ये है वो है, करेंगे नहीं, it's a different thing. पूरा industry has transformed. So what I'm talking about is, one thing is that a situation forces you to accept certain changes. वो एक situation होती है. अभी हम जो चेंजेस की बात करें वो छोटे मोटे चेंजेस नहीं है कि सिर्फ हम लोग को ऑनलाइन अडॉप्ट करना है, ऐसा वैसा नहीं है. पूरे के पूरे बिजनेसेस transformative changes they're going through. They're going through transformative changes. Now let me explain quickly to the students what transformative changes are. Transformative changes का मतलब ये है कि पूरा consumer behavior, आप लोग सब mostly management students, so is what I understand, right? The consumer behavior has completely changed. I was going through a beautiful report yesterday, and they have done some really in-depth research on how the changes are going to happen. Right? कितने लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह कंज्यूम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, राइट? व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ परचेज व्हिच आर चेंजिंग, डिस्पोजेबल इनकम के हिसाब से चॉइसेस आर डिफरेंट, राइट? सो अ लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग एंड कंपनीज विल हैव टू लर्न, द इंडस्ट्री विल हैव टू लर्न फ्रॉम दिस. इफ इंडस्ट्री लर्न्स, दैट मीन्स that the nature of work and the nature of job also changes. When the nature of work and nature of job changes, the kind of skills required by you, the kind of things that you have been doing or learning so far, will also go through a transformative change. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सिंपल सा. 3 months almost have passed, right? In these 3 months, what have you done? It is not necessary कि 3 महीने में कुछ करना था, ऐसा किसी ने बोला नहीं है कि हमें कुछ करना ही था. बट जब आप नहीं कर रहे थे, अगर आप नहीं कर रहे थे कुछ, तो कोई और कुछ कर रहा था. That person was building himself or herself. While you were waiting for the lockdown to get over, so that you can start working, और तब तक वेकेशन करते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट? कोई कुछ कर रहा था, और वो कोई आपका कंपटीशन था जो कल उठ के आपकी जॉब्स या आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खा जाएगा. आई एम स्पीकिंग इन द वेरी ले टर्म्स, बट लिटरली खा जाएगा, राइट? क्योंकि आप रेस्ट कर रहे थे. अगर आपका ये केस है तो दिस इज द टाइम टू वेक अप. सो द टॉपिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द करियर ऑप्शंस बिकॉज ऑफ और ड्यूरिंग और आफ्टर कोविड-19, राइट, इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है? करियर ऑप्शंस के साथ I also have an agenda of covering one more thing, and that is what we could have done or what we can do now, such that we can take control of the career during this lockdown. ठीक है?
ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस की जब बात कर रहा हूं मैं, so okay, just give me an idea. Can you hear me loud and clear? Because बीच में एक कॉल आ गया मेरा. Can you hear me? Just someone say yes in the chat. That's good enough for me. Come on, guys. This is not a one-way discussion. I'll be doing some kind of interaction also. Yes. Thank you so much. Okay. Got it. Thank you. Great. अच्छा, अभी yes की लड़ी लग गई है. Okay. Great. I got it. Let me give you some examples. Okay. Let me give you some examples. हम लोग ये बात कर रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंटेलिजेंस, राइट, या बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे. ठीक है. एनालिटिक्स इज अ बिग डील राइट नाउ. If I go back 20, 25, 30 years, we started with what we started with as market research, right? कि लोग data collect करते हैं so that they can take decisions, right? Of be it product launches, be it marketing tools to be used, or whatever, where the consumer is, what he is purchasing, all of it. आपने थोड़ा सा market research शायद पढ़ा होगा, since some of you or most of you are third year college students, right? So market research का idea है आपको कि market research से शुरू हुआ था. फिर the advent of computer, IT, internet, and then social media and Google search engine, ये सब की वजह से the nature of market research changed. How so? तो अब big data analytics की बात करने लगे हम. बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब आप फेसबुक पे क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, क्या कीवर्ड्स टाइप करते हो, अगर गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो क्या सर्च कर रहे हो, ये सब कुछ. अच्छा, उसमें उसके साथ आपका कोरिलेशन निकलेगा कि भाई वो बहुत कॉम्प्लेक्स, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बात कर रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, कि भाई आप कौन हो, आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हो, बिकॉज गूगल लोकेशन आपको ट्रैक कर रहा है. तो आपके पैटर्न्स को इन सब चीजों के साथ मैप किया जाता है कि अच्छा ठीक है, तो सूरत के आसपास के लोग इस तरह के इस एज के इस रीजन के लोग इस तरह का कंज्यूमर बिहेवियर रखते हैं, राइट. सो देयर इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस दैट पीपल आर गेटिंग फ्रॉम दैट बिग डेटा एनालिसिस. सो दैट इज व्हाट बिग डेटा एनालिसिस वाज. ये एनालिसिस बढ़ते गया है, कॉम्प्लेक्स होते गया है. कंपनीज नो मच मोर अबाउट यू देन यू थिंक, राइट. पहले हम सिंपली ये मानते थे कि हम जो सर्च करते हैं वो सर्च हमारे गूगल के बाजू में एड्स में आ जाएगा. उतना सिंपल भी नहीं रहा है. अब ऑफलाइन कंपनीज नो अबाउट यू, व्हाट टू सेल टू हु, राइट. सो ये एक सिनेरियो है जो सर जयेश सर ने बात किया कि भाई मार्केट्स चेंज होते रहते हैं. तो एनालिटिक्स एक एग्जांपल दे रहा हूं. अब ये एनालिटिक्स के साथ क्या हुआ? एनालिटिक्स के साथ ये हुआ कि आपने सुना होगा एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपने ये सारे वर्ड्स शायद सुने होंगे, राइट. ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, बट आप एक बात याद रखो कि आज के दिन में, आज के एज में, यू कांट से कि ये इंजीनियरिंग का काम है, टेक्निकल है, ये साइंस है. आप इसको यूटिलाइज करोगे. आप कितने अपडेटेड हो खुद इन चीजों से, भले आपको टेक्निकल पार्ट ना पता हो, दैट्स ओके, बट यू शुड बी अपडेटेड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, हाउ दे आर यूजिंग इट. सो मैं एग्जांपल देता हूं. एआई एमएल. एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, where a system, a software, a hardware-software combo is learning and applying it to the business issues, business problems. ठीक है? That's artificial intelligence. मतलब एक रोबोट, तुम रोबोट बोलो या सॉफ्टवेयर बोलो, जो भी बोलो, वो सीख रहा है और उसको एप्लीकेशन में ला रहा है. ठीक है? मशीन लर्निंग. सो एआई एमएल का कॉम्बिनेशन. अब तुम सोचो, एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और ऐसे बिजनेस में एआई एमएल को मिक्स किया जा रहा है. स्टॉक मार्केट्स के एनालिटिक्स में एआई एमएल का यूजेज चालू हो गया है. ठीक है? इट इज स्कैरी इन द सेंस दैट समवन हु टुमारो, सो ऐसा नहीं है कि समवन हु डजंट नो अबाउट दिस विल नॉट सक्सीड इन लाइफ. वो भी करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि काम तो बहुत सारे होने वाले हैं. बट फ्यूचर किस में है? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें क्या जानना होगा, राइट. मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ. मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ये एक ही चीज नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. अब इसमें एक और चीज मिक्स करो. ठीक है? There is something called augmented reality. I don't know if you've heard of virtual reality, augmented reality. Some of you have. जो गेमिंग में इंटरेस्टेड हो ना स्टूडेंट्स, उन लोग को मालूम होगा कि अभी टू डायमेंशनल फ्लैट मोबाइल स्क्रीन पे पबजी खेलना it's an old school kind of a thing, right? That's like a half a decade old thing. और आधा decade मतलब it's a big change, right? So now the way people are working, चाहे वो गेम्स की बात हो, चाहे वो एनिमेशन की बात हो, चाहे वो
मूवीज की बात हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की बात हो. So what is virtual? I'll just give you a quick understanding of these things. Virtual reality. अब ये सारे words आप कुछ लोगों के लिए बहुत नए होंगे और इनका कॉम्बिनेशन आपने सोचा भी नहीं होगा शायद. ठीक है, अब सोचते हैं. So virtual reality मतलब क्या कि something which you are let's say वो आप मोबाइल क्या वो एक you know that what do you say, that's a device that you wear and you feel like you are in a virtual world which seems real. So it's virtual reality. Augmented reality matlab kya? For example, my brother is in the business, so I will give you an example of the products he's making. So for a company, a bedsheet company, he was making a bedsheet for kids जिसके ऊपर Red Riding Hood जो स्टोरी थी उसका एक जंगल बना हुआ है, the forest and the path and the house and all that. And मोबाइल में एक ऐप है, वो ऐप के थ्रू आप उसके लेंस के थ्रू ऐप में देखोगे तो आपको 3 डायमेंशन में रेड राइडिंग हुड उस फॉरेस्ट के थ्रू चलती हुई दिखेगी एज यू मूव द फोन. सो दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेड मतलब रियलिटी को और बढ़ा के आगे बाहर लाया जा रहा है. सो दैट्स ऑगमेंटेड रियलिटी. जस्ट सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी वेयर ऑल ऑफ दिस कम टुगेदर, राइट? अब आप सोचो कि वेयर यू आर, इफ यू आर सिटिंग इन योर होम, राइट, एंड यू हैव अ डिवाइस एंड यू डाउनलोड एन ऐप, राइट, एंड आपको एक कार खरीदनी है. शोरूम में जाना जरूरी नहीं है, बिकॉज मैं उस कार में बैठूंगा तो कैसा दिखेगा, मैं बाहर से आगे से पीछे से देखूंगा तो मुझे 3 डायमेंशन में वो डिवाइस पहन के और डिवाइस पकड़ के आई कैन सी इट इन 3 डायमेंशन इन फ्रंट ऑफ मी. मैं उसको घुमा के रोटेट करके देख सकता हूं कि मुझे क्या दिख रहा है, राइट? सो प्रोडक्ट का मार्केटिंग, सेलिंग, अब ये आइडिया नया नहीं है, ये आइडिया 10 साल पुराना है, बट आज तक इंडिया में तो बहुत ही पीछे है. बट इवन द कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस have not been able to implement it to the T. COVID has forced you कि अब जब तुम बाहर जाना अवॉइड कर रहे हो, it is said that 79% of the people avoid going outside. ये जो मैं कल रिपोर्ट की बात कर रहा था, मैंने कल पढ़ा, उस रिपोर्ट का फाइंडिंग है, one of the findings. 79% of the people avoid going out of their house unless it is about some work. मतलब काम के बिना 79% लोग घर के बाहर ही नहीं निकल रहे. अगर आप निकल रहे हो तो आप उन थोड़े कम लोगों में से हो और वो नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो कंज्यूमर पैटर्न्स चेंज हो गए. अब लोग अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वो अगर इतना क्रूशियल नहीं है कि मुझे चला के, अब गाड़ी तो टेस्ट ड्राइव करके देखोगे, बट फ्रिज तो टेस्ट ड्राइव नहीं करोगे ना, एसी को टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकते ना, है ना? तो वो आप सीधा सीधा, अच्छा, देन देयर आर एप्स which will tell you, for example, if I point my phone towards where I don't have an AC, तो यहाँ AC लगेगा तो ऐसा दिखेगा, मुझे वो भी पता चल जाएगा. I can just point to my camera and my device there. So the point is, now try and mix all of this: analytics, machine learning and artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, right? ये सबको आप मिक्स करो और सोचो कि अब आज से 4 साल या 5 साल बाद की दुनिया या मे बी 2 साल बाद की दुनिया कैसी होगी, और क्या तुम, मैं, हम लोग, are we ready for it? And think that those people who are ready for it will be taking away the best jobs or best opportunities in the world. So this was my introduction. I guess आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. Yes, चलो, I don't mind having 50 yes is coming. चलो, are you with me? Are you with me right now? Please say a yes in the chat. Yes, Ritika was the first one to answer as always. Good. Very nice. चलो, तो मैं थोड़ा सा अभी एक स्टेप आगे बढ़ता हूं. अगर आपको ये कोविड सिचुएशन थोड़ा समझ में आ रहा है, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस कोविड एंड वी हैव टू अडॉप्ट सच अ वे, वी हैव टू यूज आवर हेड्स इन सच अ वे दैट वी कैन कम आउट एज अ विनर व्हेन दिस होल सिचुएशन कम्स अंडर कंट्रोल. और कंट्रोल कब आएगा? जब वैक्सीनेशंस बाहर आएंगे, पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड होंगे. ठीक है, हम वो वैक्सीन ले पाएंगे ताकि हमको कोविड, अगर ऐसे वैक्सीन निकलते हैं जल्दी से, या अगर इम्यूनिटी, जो उसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं. हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि बाय ऑटोमेटिकली some people are already have died, some people have suffered. जो बचे हैं उनका ऑटोमेटिक इम्यूनिटी अगर है तो ऐसे ही लोग आगे जाके नई जनरेशन खड़ी करेंगे जिनका ऑटोमेटिक हर्ड इम्यूनिटी है. ठीक है, सो हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड होगा या वैक्सीन बिल्ड होगा
तब नॉर्मलसी आएगी, और वो नॉर्मलसी जब आएगी और इकोनॉमी जब रिकवर होगी, that time we have to be ready. Now think about it. If you are in the third year right now, right, you are going to come out somewhere around April, May next year, 2021, third year wale students. Am I right? जो अब third year में आए हैं, that is. If you are going to get out in 2021, अभी इकोनॉमी अफेक्ट हो चुकी है, ग्लोबली हो चुकी है, इंडिया में थोड़ा कम इम्पैक्ट है पर इम्पैक्ट है, और शायद गवर्नमेंट बता रही है उसे ज्यादा इम्पैक्ट है. ठीक है, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट 2-4 महीने में समझ में आ जाएगा. उसको रिकवर होते होते नेक्स्ट ईयर तो रिकवरी फेज शुरू होगा, राइट. सो आप जिस टाइम पे जॉब लेने निकल रहे हो, राइट, तब जॉब सिनेरियो खराब नहीं होगा, पर इतना द बेस्ट अच्छा सिनेरियो तो नहीं होगा. आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ डूम्सडे काइंड ऑफ अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. इतना खराब नहीं होगा, बट इतना अच्छा भी नहीं होगा. जो लोग नॉर्मल लोगों को तो जॉब मिल रही होगी, और जो अच्छे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कभी भी रिसेशनरी ट्रेंड्स आती हैं. रिसेशन इज नॉट अ वन टाइम थिंग. रिसेशन इज अ वेरी साइक्लिकल थिंग. इट कीप्स कमिंग एंड गोइंग. हमेशा छोटे बड़े रिसेशन आते जाते रहते हैं. पिछली बार एक बड़ा रिसेशन सिनेरियो आया था, वो 2012-13 में इंडिया में था. ग्लोबली तो वो 2007-8 से चल रहा है, यूएस सबप्राइम लोन क्राइसिस के टाइम से. यूएस में क्राइसिस हुआ था, इफ यू नो, लेमन ब्रदर्स का, राइट. उसके बाद यूरोप में क्रेडिट क्राइसिस हुआ था, सॉवरेन डेट क्राइसिस, राइट. सो वो सब के बाद इंडिया अफेक्ट हुआ था 2012-13 में. उसके बाद हम अभी 20 में अफेक्ट हो रहे हैं वापस. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये होता रहता है. सो इतना अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है. और उसमें वो लोग जिनका इंटरेस्ट है, जो वो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है, एक्सपर्टीज है, ये दो तरह के लोग, या दोनों है, ठीक है, वो लोग इस रिसेशन से सरवाइव कर ही जाए, किसी भी रिसेशन से सरवाइव कर जाए, जिनका इंटरेस्ट है और जिनका एक्सपर्टीज है. ठीक है, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं होता है. हम लोग सुनते हैं ना कि रिसेशन में जॉब्स गई. ठीक है, जॉब्स गई, उसके 2 रीजन हो सकते हैं. या तो कंपनी ही पिट गई है, तो अच्छे बुरे सब लोग का जॉब जाएगा. कंपनी पिट गई है, कंपनी पिटी नहीं है, अफेक्ट हुआ है रेवेन्यू, पर पिटी नहीं है, बंद नहीं होने वाली है, और वो ले ऑफ कर रही है, तो वो उन लोगों को ले ऑफ करेगी जो लेसर इंपॉर्टेंट है. नॉट इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, लेसर इंपॉर्टेंट है. ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को वो नहीं निकालेगा. ओके, सो आपको ये पहले तो समझना है. अब हम लोग आते हैं मेन बात पे. सो कोविड सिचुएशन समझ में आ रहा है. मैं एक समराइज कर देता हूँ कि मैंने अब तक, कुछ गया है, मैं एक क्विक अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ, समरी ले लेता हूँ कि हमने क्या बात की अभी तक. कोविड है, कोविड रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू बी केयरफुल. 2, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, हर चीज में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आने वाले हैं. you are supposed to adjust and stay ahead of those transformative changes as much as possible. ठीक है, that is 2. 3, I gave you some examples. कभी एनालिटिक्स हो गया, या AR VR हो गया, या AIML हो गया, या उन सब का कॉम्बिनेशन में स्टॉक मार्केट और सारे कमोडिटी मार्केट्स और मार्केट्स पे कैसे इंपैक्ट आएगा, ये सब हो गया. तो ये सब के आसपास हमें रहना है. ये सब में हमको अपने आप को बिल्ड करना है. ठीक है, इंडिया में ऑलरेडी ह्यूज पॉपुलेशन है. उस ह्यूज पॉपुलेशन में से ह्यूज मोबाइल और इंटरनेट का पेनिट्रेशन है. वो ह्यूज मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन भी अभी बहुत छोटा परसेंटेज है एज कंपेयर टू द इंडियन पॉपुलेशन. और इस चक्कर में in the whole COVID situation, more and more people have come online using payments or whatever, online. So ये सब बढ़ गया है. जो चीज डिमोनेटाइजेशन नहीं कर पाया वो कोविड ने कर डाला. एक तरह से देखो तो people don't want to touch the money. I don't want to give my debit card or credit card to a shopkeeper कि वो अपने हाथ से छुए उसको. मैं वो दूर से वो गूगल पे करना प्रेफर करता हूँ. Right? So these are the kind of changes that you have to keep thinking about. So this is the part 1 of my discussion. Okay, now let's go on to the part 2 of my discussion. करियर ऑप्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बात शुरू कर दी है, तो मैं करियर ऑप्शंस की बात करता हूँ कि भाई न्यू एज करियर ऑप्शंस. अब ये न्यू एज करियर ऑप्शंस है ना, पिछले 10 साल से रेलेवेंट हुआ पड़ा है, और पिछले 5 साल से तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हुआ है. व्हाट इज दिस न्यू एज करियर ऑप्शन? तो न्यू एज करियर ऑप्शंस वो होते हैं पहले के जमाने में. तो न्यू एज जब बोल रहा हूँ, मतलब कि आज से 20 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैं बच्चा था, मैं स्कूल में था, तब जब से मैंने करियर के बारे में सुनना शुरू किया है, मेरे टाइम पे
या मेरे पहले के टाइम पे, या आपके जो सर्स हैं उन सब के टाइम पे, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे तब के टाइम की बात करता हूँ। जनरली एक थॉट प्रोसेस होता था कि भाई यार, एक बच्चा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो साइंस लेना चाहिए उसको। 10th में अगर 75 के ऊपर आ गए तो माँ बाप, आसपास के लोग सब पुश करते कि बेटा तू साइंस ले ले। साइंस क्यों ले ले? बिकॉज अगर परसेंटेज आ गए, थोड़ा लाइफ में थोड़ा कुछ कर लिया तूने जिंदगी में 12वीं में, तो यू विल बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर। कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बना तो डेंटिस्ट बन जाएगा, डेंटिस्ट नहीं बना फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बात थी। अच्छा, मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो इंजीनियर बन जाएगा, इंजीनियर नहीं बनेगा फार्मासिस्ट बन जाएगा, फार्मेसी में चला जाएगा। बस यही ऑप्शंस थे। एक साइंस स्टूडेंट मतलब साइंस में जाने का, अच्छे मार्क्स आए तो, और उसमें इनमें से कुछ पिक करके करने का। दिस वाज अ थॉट प्रोसेस। जो बच्चा साइंस 10th में 75 नहीं ले पाया और साइंस नहीं ला पाया, उसको, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, बट उसको ऐसा मानते थे कि ये थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है। जबकि अब हमको पता है कि इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट मार्क्स ओनली। ठीक है, इंटेलिजेंस इज, there's something, a concept called multiple intelligence, which is about, बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है। कोई डांस कर रहा है, that is also a different kind of intelligence। कोई गा रहा है, म्यूजिक कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है। अब यार तुम एक काम करो यार, फॉर एग्जांपल एक स्टूडियस बच्चे को लेके आओ, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स ला देता है। क्या वो अच्छा क्रिकेट खेलने का जरूरी है? खेल भी सकता है पर जरूरी नहीं भी है, राइट? तो एक क्रिकेट वाले को मार्क्स लाना जरूरी क्यों है? तो वो एक अलग डिस्कशन है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। पर पहले ये माना जाता था कि यार साइंस नहीं ले पाया तो ये नॉट दैट इंटेलिजेंट, तो इसको कॉमर्स में भेज दो, कुछ तो कर लेगा। और उसमें से फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो CS कर लेगा। ये इंटेलिजेंट इज लोगों की परिभाषा, ओके, नॉट अ रियल परिभाषा। सो डोंट कंसिडर योरसेल्फ इन दैट सिनेरियो। सो CS कर लेगा, नहीं CS कर पाया तो देखेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो MBA कर लेगा, यू नो। सो वैसे एक पिक्चर होता है कॉमर्स में। उसके बाद जो वो भी नहीं कर पाया, कॉमर्स करने के भी लायक नहीं है, जिसको अकाउंट्स इकोनॉमिक्स भी समझ में नहीं आता, वो आर्ट्स कर लेगा। मतलब आर्ट्स वाले तो जैसे यू नो यूजलेस लोग हैं, ऐसा मानते थे। जबकि आज इस तरह नहीं है। आज फॉर एग्जांपल अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स बाय चॉइस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज चूज करते हैं। Why? Because that's a real career option. And if you go on to after 15 years of your education, graduation के 15 साल बाद या 10 साल बाद देखोगे ना आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये साइंस कॉमर्स ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो ठीक है। मैं पॉइंट जो बोलना चाहता हूँ कि न्यू एज करियर ऑप्शंस जो है ना, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस ओल्ड थॉट प्रोसेस ऑफ साइंस कॉमर्स बीकॉम BBA यू नो ओनली, और CS करना है ये वो। तो ये सब थॉट अब नहीं है। मैं इसके 2-3 एग्जांपल देके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल MBA ही ले लो, राइट? सो MBA, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग एंडेवर करियर्स। मैंने अपना इंट्रोडक्शन अभी तक दिया नहीं है, मैं जनरली अपना इंट्रोडक्शन बीच में देता हूँ, ठीक है, बिकॉज बच्चों को एक बार इंटरेस्ट आ जाए फिर वो मेरा भी इंट्रोडक्शन सुन लेंगे, है ना? ठीक है। सो हम लोग MBA के एंट्रेंस के साथ डील करते हैं, राइट? वी आर टीचिंग दैट। सो हम द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी सी कि एक MBA आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देके एक BE इंजीनियर को, BTech या BE स्टूडेंट को MTech करना है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग, तो वो बंदे को जो एग्जाम देनी पड़ेगी ना, गेट, उस गेट में उसने जो बैचलर्स में पढ़ा है ना ग्रेजुएशन में, वो पूछा जाएगा। सेम वे इफ यू आर गोइंग फॉर आर्किटेक्चर, मास्टर्स इन आर्किटेक्चर, तो बैचलर्स आर्किटेक्चर चेक किया जाएगा। या आप फार्मेसी, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी कर रहे हो, M.Pharm, तो आपका B.Pharm चेक किया जाएगा। बेसिकली आपका नॉलेज ऑफ दैट डोमेन, ऑफ दैट फील्ड इज गोइंग टू बी चेक्ड। MBA के एग्जाम में कभी भी आप देखोगे तो मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, कंज्यूमर बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब नहीं पूछा जाता है, कभी भी नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? MBA के लिए भी BBA पूछना चाहिए ना। बट आप समझो कि जब एक MBA को हायर कर रहा हूं मैं, एज ए कंपनी अगर हायर कर रहा हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तूने BBA किया है, BCom किया है, BTech किया है, B.Pharm किया है, एज फार एज यू आर अ गुड MBA, राइट? मैं एज अ फार्मा कंपनी हूं सपोज, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार, मैं एक B.Pharm को भी MBA करके हायर कर लूंगा, एक BCom को भी MBA करके हायर कर लूंगा। वो अच्छा होना चाहिए, वो मेरे रिक्वायरमेंट में फिट होना चाहिए, दैट्स ऑल। Do you understand this? So basically, MBA is
अ वेरी नॉन कॉमर्स, सो लोगों को लगता है ये कॉमर्स फील्ड है. कॉमर्स मैनेजमेंट इज नॉट अ कॉमर्स फील्ड. नहीं तो बीकॉम और बीबीए अलग नहीं होता, एक ही चीज होती, पर अलग है, उसमें फर्क है. राइट. सो बेसिकली मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज इमटेरियल. क्या आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता. ऐसा एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ. I'll give you another example. Law. A lot of people used to go for law. ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, 3 साल बीए करेंगे, बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स. सो वो बच्चे, कुछ बच्चे जो साइंस कॉमर्स नहीं कर पाए, आर्ट्स ले लिए, उनमें से जो स्मार्ट बच्चे थे, उन लोगों को आगे कुछ करना है बड़ा, तो क्या कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं. तो 3 साल बीए करेंगे, 3 साल एलएलबी करेंगे. तो आज हम लोग को जो परसेप्शन है ना कि लॉ क्या होता है, लॉयर कौन होता है, तो लॉयर वो होता है जो वो सनी डियोल की तरह है ना, कोर्ट रूम में बैठ के तारीख पे तारीख करता है, या जज की तरह बैठ के ऑर्डर करता रहता है. दैट इज द पिक्चर वी हैव इन माइंड फॉर लॉ, बट लॉ इज नॉट दैट. लॉ इज ह्यूज. टुडे आप कॉर्पोरेट लॉ की बात करो, कंपनीज गेट इनटू लिटिगेशंस प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम. So either they want to get out of it or they don't want to get into that problem. So they have lawyers on board just like they have managers. So अगर एक मैनेजर को 10-15 लाख की सैलरी दी जाती है एक अच्छे कंपनी में, अच्छे जगह से एमबीए किया है, राइट, तो उसको 10-15 लाख के ऊपर सैलरी मिलती है. वो भी सिनेरियो बात करूंगा मैं 2 मिनट में. ठीक है. तो अगर वो मिलने वाली है तो एक लॉयर को भी 10-15 लाख की सैलरी मिलती है अगर अच्छी जगह से लॉ करके अच्छी कंपनी में जॉब ले रहा है. It is that way. It doesn't matter. तो पहले जो 3 साल का बीए और 3 साल का एलएलबी होता था 6 साल में, अभी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है. फॉर एग्जांपल 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, आप जो चाहो देता है 12th के बाद. सो अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हो तो बीबीए एलएलबी करोगे ना, बीए एलएलबी क्यों करोगे? आपको बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए. सो थिंग्स हैव चेंज्ड and we don't know about it. और हमारे, so I'm sorry to say but with all due respect, पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं अपने को और अपना अच्छा ही चाहते हैं, बट कई बार पेरेंट्स को ही नहीं पता होता ना ये सब, क्योंकि वो लोग जब पढ़े थे 20 साल पुराना इंफॉर्मेशन होता है. तो स्टूडेंट्स, आपको बोल रहा हूं मैं अब, फर्स्ट थिंग, ओके, अब मैं पॉइंट्स पे आऊंगा एक एक करके, तो आप लोग अगर लिख रहे हो तो लिख भी देना. फर्स्ट थिंग, आपका काम है कि आप है ना बात करते रहो स्पेशलिस्ट से, पीपल लाइक मी, पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, पीपल यू नो, कोई अंकल, कोई भैया, कोई कुछ कर रहा है. एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट है. तुम्हें कितना मालूम है विल पुट यू वन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन. ठीक है. सो पहला है कि आप बात करो, लोगों से पता करो कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, हो क्या रहा है. अगर वो पता नहीं है तो तुम रेगुलर वही रट में चलते रहोगे कि हाँ ठीक है ये करेंगे, उसके बाद जॉब करेंगे, उसके बाद बड़े होंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, मतलब वही नॉर्मल ग्रोथ प्रोसीजर चलता रहेगा तुम्हारा. दैट इज नॉट द वे टू लिव अ लाइफ. सी अंडरस्टैंड, मैं अपने बच्चों को बोलता रहता हूँ, डोंट बी अ फुटबॉल, राइट. यू, मोस्ट ऑफ अस आर फुटबॉल्स. मतलब जिंदगी ने जहां लात मारी वहां जाएंगे. हमारा लाइफ हमारे कंट्रोल में. तुम लोग अपने अपने केस में सोचो, कितने लोग बाय चॉइस आज जो कर रहे हो वो कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, कितने लोग बाय चॉइस गए हो कि मुझे यही चाहिए था और मैं वो कर रहा हूं. और अगर नहीं कर रहे हो तो अब तुम्हारा लाइफ कंट्रोल में लो ना. अगर बीबीए के बाद एमबीए करना है, ठीक है, सिद्धार्थ एंड नमन, yes I am sure there will be 5-10% people जो बाय चॉइस कर रहे हैं. What about the others? ठीक है, you understand this, right? I'm not asking a question. I'm not asking a question. It's a rhetorical question. मतलब कि most of the people are not doing it by choice. 4-5 लोग और 5 लोग होंगे, तो 100 में से 10 लोग बोलेंगे कि हाँ मैंने चॉइस से लिया है, right? Okay. So that's the point. मानव, तेरे को बात समझ में आई बेटा? It's not a question. Okay. फुटबॉल तो तुम फिर भी हो, ठीक है, अभी भी तुम देखना, तुम अब फॉर एग्जाम्पल गो फॉर अ जॉब एंड बिफोर दैट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कौन सी कंपनी में काम करना है. अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे गूगल में काम करना है सर, जियो में काम करना है, मुझे फ्यूचर ग्रुप में काम करना है, सम सच, मुझे एचयूएल में काम करना है, कोको कोला में, हिंदुस्तान कोको कोला में काम करना है, राइट, जाओ और जॉब लेके आओ, तो तुम फुटबॉल नहीं हो. 5 कंपनी का नाम दो पर पर्सन, और वो 5 कंपनी में से जॉब लेके आओ अच्छी.
ये डिसाइड करो कि मुझे 25,000 का जॉब चाहिए, चलो बीबीए के बाद निकाल के दिखाओ 25,000 का अच्छा जॉब which is not just a call center. You know, call center भी एक job है, nothing wrong with it, but get a job of 25,000, 30,000. तो मैं मानूंगा कि आप फुटबॉल नहीं हो, ठीक है? हम सब फुटबॉल है कहीं ना कहीं, जहां जिंदगी, और ये मैं आपसे 15 साल बड़ा हूं और 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, इवन इफ आई एम सक्सेसफुल, कि जनरली सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, बट अपने हाथ में लेना चाहिए। सब कुछ हाथ में नहीं होता है, बट वील हैव टू टेक थिंग्स इन आवर हैंड। फिर भले रिजल्ट जो आए, मैंने अपनी मेहनत करी, ठीक है? मैं एग्जांपल दे रहा था कि सपोज किसी को एमबीए करना है, ठीक है? एमबीए तो तुम सब कर लोगे ना यार, सब कर लोगे। गुजरात की बेस्ट कॉलेज कौन सी? रीजनल, फॉर एग्जांपल निर्मा, चले जाओगे, निर्मा तो जाओगे, नथिंग रॉन्ग विथ इट। पर अगर तुम निर्मा जाने की एबिलिटी अभी रखते हो और निर्मा जाते हो, तो तुमने क्या उखाड़ा? निर्मा इज अ गुड कॉलेज, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। सो लेट्स से आप निर्मा से पास आउट हो गए, तो एवरेज सैलरी विल बी समवेयर बिटवीन 9-10 lakhs, 8-9-10 lakhs एवरेज सैलरी। सो मोस्ट ऑफ यू विल, मतलब एटलीस्ट मोर देन 60% ऑफ यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग मोर देन 8-9 lakhs का पैकेज निर्मा में। पर मुझे अगर निर्मा में मिल रहा था, तो मैं टैपमी में नहीं लूं? टैपमी इज माय बी स्कूल, मैं टैपमी में क्यों नहीं लूं, जहां पे मुझे 12-13 का एवरेज पैकेज मिलेगा? अगर मुझे 12 का एवरेज पैकेज मिल रहा है, तो मैं केजे सोमाया नहीं लूं, जहां पे मुझे 14 का पैकेज मिलेगा? अगर मुझे केजे सोमाया मिल सकता है, तो मैं एमडीआई नहीं लूं, जहां पे मुझे 16-17 लाख मिलेगा? और मुझे एमडीआई मिल रहा है, तो मैं IIM ABCL नहीं लूं, जहां पे मुझे 19-20 मिल रहा है? तो तुम जो केपेबल, अगर जहां केपेबल हो वहां ही जाओगे, तो तुम फुटबॉल हो। पर तुम कंट्रोल लेके तुम्हें जो चाहिए वो कर रहे हो, तो तुमने कुछ किया। और ये कोविड सिचुएशन इज अ बेनिफिट, सो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बेनिफिट है तुम्हारे लिए। क्यों? बिकॉज यू कैन यूज दिस टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट टू व्हाट यू वांट टू डू। क्या करना है मैं बताता हूं, ठीक है? सो क्विक कमिंग बैक टू माय करियर ऑप्शन, न्यू एज करियर ऑप्शन, जो मैं बोल रहा था कि भाई मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, ठीक है? उसके अलावा लेट्स से लॉट ऑफ पीपल वांट टू गो इनटू सिविल सर्विसेज। आई डोंट नो, आप में से भी कोई होंगे शायद, ठीक है? सिविल सर्विसेज क्यों नहीं? यूनियन, यूपीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब आईएएस, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस या रेवेन्यू सर्विस या व्हाटएवर, आईईएस, आईआरएस, बहुत सारे होते हैं, और आईएफएस, सो फॉरेन सर्विस, राइट? सो आप उसमें क्यों नहीं जाना चाहते? लाल बत्ती वाले हो गए, राइट? यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द ब्यूरोक्रेट, यू रन द गवर्नमेंट, है ना? सो वो एक ऑप्शन है, उसमें साइंस, कॉमर्स, बीबीए, एमबीए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड, ओके, माय वेरी क्लोज फ्रेंड, जो मेरे साथ एमबीए कर रहा था, तो उसने अपना इंजीनियरिंग किया, उसके बाद उसने एमबीए किया, उसको करना था अपना यूपीएससी एग्जाम देनी थी, आईएएस बनना था, तो उसने एमबीए के बाद 2 अटेम्प्ट दिए। क्यों एमबीए के बाद अटेम्प्ट दिए? बिकॉज एमबीए वुड मेक हिम मैच्योर एंड मोर नॉलेजेबल, सो ही बिकेम मोर नॉलेजेबल एंड देन ही अपीयर्ड फॉर आईएएस। और 2 साल अटेम्प्ट करने के बाद ही गॉट इनटू आईएएस। आज केरला में ही इज वन ऑफ द टॉप कलेक्टर्स में आता है वो। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको स्टेट पर में जाना है, तो फॉर एग्जांपल क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, तो जीपीएससी दे सकते हो, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। फर्क पड़ता है कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? नहीं पड़ता है। डिफेंस में कुछ लोग जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल। So I am telling you now, and I am a CAT training institute, MBA training institute, and I am telling you all these options are available. ठीक है? A lot of you might still be interested in computers. आप में से कुछ लोग कंप्यूटर्स में और कोडिंग में और सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड होंगे, ऐप क्रिएशन या वेबसाइट क्रिएशन, राइट? तो आप एमसीए कर सकते हो। अगर आपके पास मैथ, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, तो आप एमसीए भी कर सकते हो, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, and you can go into computer programming or whatever, right? Defense, for those people who are in second, third year, you can start preparing for CDS, combined defense services. आपने वो मूवी देखा होगा लक्ष्य, ऋतिक रोशन वाला? उसमें जो प्रिपरेशन के लिए वो जाता है, उसको IAMA बोलते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, राइट? सो और वहां से आप सीधा ऑफिसर निकलते हो।
right? So IMA, you can prepare for that, right? Basically जो भी करो ये टाइम को यूटिलाइज करना होता है। अब मैं थोड़ा सा ना टाइमलाइन की बात करता हूँ, मुझे टाइमलाइन की बात करनी है बहुत इंटरेस्टिंगली, बिकॉज तुम में से ना काफी लोगों को हवा नहीं है, क्योंकि सी बेसिकली व्हाट द वे वी थिंक, आई वाज आल्सो स्टूडेंट, आई अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ अस थिंक यार बहुत टाइम है ना मेरे पास, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। थर्ड ईयर वाला तुमसे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में तो अभी नहीं आए थे, कुछ ही दिन पहले, ऐसा फीलिंग नहीं है कि अभी तो फर्स्ट ईयर था, है ना? अभी थर्ड ईयर हो गया। तुम्हारे साल कितने जल्दी चले गए हैं। अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो आपका ये साल भी फटाफट निकल जाएगा, अगर सेकंड ईयर में हो तो ऐसे ही देखते देखते तुम थर्ड ईयर में आ जाओगे। तो प्रिपेयर कब करने का, when do you prepare? अच्छा, lot of people might have questions right now, मैं लास्ट के 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए भी रखूंगा, ठीक है? So you can either hold your questions or you may keep typing your questions, I'll see at the end of it, okay? So कब करने का, मैं कैलकुलेशन देता हूँ बहुत प्यारा सा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली सब कौन कौन से बच्चे यहाँ पे है, कौन से ईयर के, तो मैं एक एक करके बात शुरू करता हूँ। जो लोग थर्ड ईयर खत्म कर चुके हैं, अगर वो लोग यहाँ पे है, अगर थर्ड ईयर खत्म कर चुके हो, एग्जाम दे चुके हो, देने वाले हो, व्हाटएवर, राइट? अगर तुम लोग यहाँ पे हो तो एक मस्त सिनेरियो समझाता हूँ। आपको जॉब मिलनी कब चाहिए, आप जॉब कब ज्वाइन करोगे? सो लेट्स से ग्रेजुएट हो चुके आप अप्रैल में, अप्रैल या मई, या कोविड की वजह से जून हो जाए, व्हाटएवर, ठीक है? अप्रैल मई में आप अगर पास आउट होते हो नॉर्मल डेज में, तो जून जुलाई में आप जॉब ज्वाइन करते हो, अगर जॉब करते हो तो, ठीक है? जून जुलाई में जॉब चालू करने के लिए आपको उसकी एफर्ट कब मारनी पड़ेगी? आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि इन इंजीनियर, गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गुड जहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं, कायदेसर बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं, जहाँ पे कंपनियां सामने से लेने आती है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ कोर्स, वहां पे अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब सेकंड लास्ट सेमेस्टर, आपके केस में फिफ्थ सेमेस्टर जैसा, तब से रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है। सो सितंबर अक्टूबर या 10 दिसंबर तक तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाए तो तुम इत्मीनान से बैठे हो, ठीक है? तो अगर तुम पास आउट कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ में जॉब होनी चाहिए आज के दिन में, अगर नहीं है तो जॉब नहीं है, अब ढूंढना शुरू करोगे तो तुम ऑलरेडी लेट हो। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको डरा रहा हूं बिकॉज आपके लिए लेट हो चुका है। अगर आप ऑलरेडी थर्ड ईयर पास कर रहे हो और आपके हाथ में जॉब नहीं है तो क्या करने वाले हो? एक, कोई बात नहीं, जॉब नहीं है लेकिन आपने कुछ और प्रिपेयर किया है, लेट्स से आप सीए बन रहे हो और सीए का फाइनल ईयर ये कर रहे हो, या अब आर्टिकलशिप शुरू होने, व्हाटएवर, ठीक है? अगर सीए सीएस कर रहे हो और उसके सेकंड थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हो तो वेरी गुड, तो आप कुछ कर रहे हो, जॉब नहीं है तो चलेगा, बिकॉज तुम कुछ कर रहे हो और 1-2 साल के अंदर तुम कुछ करके रहोगे, यू विल एंड समथिंग एंड यू विल हैव अ प्रोफेशनल डिग्री। जो लोग के पास जॉब भी नहीं है और जो लोग सीए सीएस जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, यहाँ बीकॉम या बीबीए कुछ बच्चे अगर कर रहे हैं तो वो भी नहीं कर रहे हो, तो आपने एमबीए की तैयारी की होगी, अच्छी बी स्कूल में जाने के लिए कैट या सीमैट या कुछ दिया होगा, क्योंकि उसका कॉलेज भी आपका जून जुलाई में शुरू होना है या अब अगस्त सितंबर हो जाएगा, तो उसके लिए कौन सा कैट लगेगा? कैट अगर देने वाले थे तो आपको नवंबर 2019 का कैट देना चाहिए था, तो 2019 का कैट अगर आपको देना चाहिए था तो अगर आपने नहीं दिया तो लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, सीमेट दे देते, सीमेट भी फरवरी मार्च में हुआ है, फरवरी में, जैन फेब में, सॉरी जैन एंड में, तो अगर आपने सीमेट भी नहीं दिया 2020 में तो आपका वो भी मिस हो गया, तो आपको एमबीए में अच्छी कॉलेज में जाने के लिए आपका पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि आपके पास जॉब नहीं है, आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, आपने एमबीए की तैयारी नहीं की है, तो आपने किया क्या? और अब ढूंढना शुरू करोगे, रुक जाओ, ठीक है? अब ढूंढना शुरू करोगे तो थोड़ा कोविड की वजह से अफेक्ट होगा, कोई टेंशन नहीं। अब जो लोग थर्ड ईयर में अभी आए हैं उनसे बात करता हूँ, सेम सिचुएशन फॉर यू, आप नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे, नेक्स्ट ईयर जून तक जुलाई तक जॉब चाहिए होगा या एडमिशन चाहिए होगा या व्हाटएवर, तो उसके लिए कौन सा कैट दोगे? नवंबर 2020, आज हम बैठे हैं जून 2020, आपके पास कितना टाइम बचा है? 4-4.5 महीने, 4.5 महीने, अभी भी कैट की तैयारी हो सकती है, अभी भी कैट की तैयारी हो सकती है,
बट आप अभी तक अगर नहीं जागे हो तो बहुत सीरियस इशू है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं अभी। सो वही कैट 2020 मतलब थर्ड ईयर जो आए हैं उन लोग की बात कर रहा हूँ, जो थर्ड में आए हैं अभी, वो लोग 2020 में देंगे अगर कैट। वो 2020 की कैट की तैयारी कब शुरू हुई थी? 2019 अप्रैल में मतलब आपका 1 साल निकल गया। अब मैं सेकंड ईयर वालों से बात कर रहा हूँ। सेकंड ईयर वालों, तुम लोगों को प्रिपरेशन कब करना चाहिए था? तो तुम्हारी जो बैचेस है 2021 के कैट के लिए, नेक्स्ट नवंबर में जो आएगा 2021 का कैट सेकंड ईयर वाले देंगे, उसका बैच मेरा 2 महीने पहले शुरू हो चुका था। पहला बैच मार्च अप्रैल में, 2 नहीं 3 महीने पहले, मार्च अप्रैल में शुरू हुआ था। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका कंपटीशन कर रहा है भाई। स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, यू आर नॉट। आई होप आई गॉट योर ईयर्स, आई होप आई गॉट योर सीरियसनेस कि भाई अभी करना पड़ेगा। और अभी कोविड के इसमें लॉकडाउन है, अभी प्रिपरेशन कर सकते हो बिकॉज लोड नहीं है, कॉलेज का लोड नहीं है, फ्रेंड्स को मिल नहीं सकते, मम्मी पापा निकलने नहीं देंगे। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स आई एम यूजिंग बट आई थिंक सम प्रोफेसर्स माइट माइंड, बट तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो पढ़ लो ना यार, मतलब पढ़ लो या कुछ प्रिपेयर कर लो या बिल्ड योर करियर इन दिस टाइम। नेक्स्ट सेक्शन में हाउ टू बिल्ड दैट करियर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सो लास्ट 10 मिनट्स मेरी वो है। तो आपको बेसिकली समझ में आ रहा है कि आपको देर हो चुका है, यू आर लेट, यू शुडंट बी लेट एनी फर्दर बिकॉज दैट विल बी डूइंग अ डिससैटिस्फैक्शन, क्या बोलते हैं, इनजस्टिस टू योर करियर। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ये, फाइनली मैं एक बात को क्लोज करता हूँ इस बात को, कि बहुत सारे जो लोग जो ये बोल रहे हैं बहुत टाइम है, बेटा तेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं बचा है। ठीक है, और जो टाइम बहुत है करके बैठा रहेगा ना, वो आगे भी वही करेगा और सक्सेसफुल होने के लिए इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इंग्लिश में एक वर्ड है, इंग्लिश नहीं एक्चुअली इटालियन में ये फ्रेज है जो इंग्लिश में यूज करते हैं, कार्पे डीएम, CARPEDIEM। कार्पे डीएम मतलब सीज द डे, इस दिन को सीज करो, अपने हाथ में लो, कंट्रोल में लो। मैं जो बोल रहा था, फुटबॉल मत बनो, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड स्टार्ट डूइंग इट। ओके, सो मैंने करियर ऑप्शंस की कुछ बात की। अच्छा, इसके अलावा और क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं क्विकली? सो जर्नलिज्म हो सकता है, कुछ लोगों को जर्नलिज्म रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है बीबीए के बाद। लॉट ऑफ पीपल हु आर गुड एट स्पीकिंग, हु आर क्या बोलते हैं, हु आर फायरी इनसाइड, हु आर यू नो हु हैव दैट एक्टिविज्म थोड़ा सा, किया नहीं मेरे को इसके सच जानना है, और लैंग्वेज पे कंट्रोल अच्छा है, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर, गुजराती, यू कैन गेट इनटू जर्नलिज्म। एडवर्टाइजिंग is another good field, nice field where a little creative हो, अगर आप communication समझ सकते हो, लोगों को क्या चाहिए वो समझ सकते हो, तो आप एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन में जा सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट में तो मैंने बोला कौन कौन जा सकता है मैनेजमेंट में, कोई भी जा सकता है जिसको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, सर मुझे बिजनेसमैन बनना है या मेरा फैमिली बिजनेस संभालना है। मुझे एक बात बताओ, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर समझते हो ना, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, कि जहां पे मैं अपॉर्चुनिटी स्पॉट करूं और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करूं और उसको फिर स्केल अप करने के हिसाब से ले जाऊं। अगर आपको बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं होती, उसके लिए कॉलेज नहीं होती। पर उसके लिए अगर आपको नॉलेज हो फंक्शनल बिजनेस का, मैनेजमेंट का फंक्शनल नॉलेज हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, तो वो आपको हेल्प करता है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो काम का है मैनेज। क्योंकि बच्चों को ये डाउट होता है कि मैनेजमेंट किसको करना चाहिए। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस वाले ये सोचते हैं कि यार मेरा तो गद्दी तैयार है, मेरे को तो बैठना ही है ना। बट आई टेल यू व्हाट, उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार सर इसका तो घर का बिजनेस है, बैठ जाएगा, सीधा संभाल लेगा, है ना। ऐसा होता नहीं है। जनरली आप देखो तो हर जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स सेकंड थर्ड जनरेशन पे सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के जैसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अब ऐसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा एक सिनेरियो देता हूँ। ठीक है, मेरे स्टूडेंट के साथ ये हुआ था। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है 19-20 साल पे BBA या BCom खत्म करता है और सीधा पापा के बिजनेस पे जाके बैठ जाता है, ठीक है, और डायरेक्टर लेवल पे या मैनेजिंग लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे बैठ जाता है,
आपको लगता है कि उसके नीचे जो लोग हैं जिन्होंने उसको 10 साल पहले भी देखा था जब तुम शॉर्ट्स में घूम रहे थे, वो तुमको उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना आपके फादर को रिस्पेक्ट करते? अनलेस दे सी योर डिसीजन मेकिंग पावर, दे सी दैट यू आर अ वेरी स्मार्ट गाय, जब तक वो ये सब देखेंगे नहीं ना, जब आप मेच्योर डिसीजन ले रहे हो, तब तक वो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे. सो वेयर डू यू गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम? बाय एज, एजुकेशन और एक्सपोजर. तो आपको एज, एजुकेशन, एक्सपोजर चाहिए होगा to get accepted by the team as a manager or managing director. You understand? So that is where MBA comes in. फिर वो लोग जो of course अपनी लाइफ जॉब करना चाहते हैं और मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, HR में इंटरेस्ट है, ऑपरेशंस में इंटरेस्ट है, ऐसे करके आप उसको आगे ले जाना चाहते हो, such people should do management, right? So I hope you guys get this, right? कि किसको क्या करना चाहिए. अब क्विकली मैं ये बात खत्म करता हूं यहाँ पे. अब मैं क्विकली अपना इंट्रोडक्शन करके कि आपको समझ में आए कि आपसे कौन बात कर रहा है, उसके बाद हम चलते हैं कोविड में कैसे हम यूटिलाइज करें, क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो आई वांट यू टू के आप पेपर पेन लेके बैठ के नोट करें. ठीक है, इफ वट एवर मेक सेंस टू यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई नेम इज सजील शाह, राइट? सजील शाह, डिफिकल्ट नेम. आई स्टे इन अहमदाबाद, but I work with Endeavor Careers very closely. In fact, मैं आपको पहले से ले चलूं तो मैं एक इंजीनियर हूं. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियर था. I got a job, but I did not want to do a job because I wanted to do a business later on. पर उसके पहले मुझे MBA करना था. So I started with my MBA. I did my MBA from TA Pai Management Institute, Manipal. So I did my majors in marketing and sales and minors in finance. ठीक है. So ये पढ़ाई करने के बाद I got a job on campus after MBA in a company called UB Group. आपने सुना होगा, नाम नहीं पता होगा, but Kingfisher, विजय माल्या जानते हो, right? So that is UB Group. So I worked for UB Group. I started as a sales manager for Goa State. उसके बाद मैंने I grew within 3 years of my MBA. I was the head of marketing, trade marketing for West India. So मैं West India marketing कर रहा था. ठीक है काम. ये 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आया कि मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग समझ में आ गया है. ठीक है, और मुझे वो करना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट है. सो मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया. That startup was in education sector. A lot of people ask me कि सर आपने एजुकेशन सेक्टर में कौन आता है, इतना प्यारा सा आपका जॉब था, हाई पेइंग MNC जॉब छोड़ के, why are you teaching? So I by heart I'm a teacher. I love to teach, mentor and counsel students for their career. So that's what I do. I've built probably tens of thousands of careers so far, and I am an active teacher right now also. ठीक है, 11 साल हो गए मुझे. और वो स्टार्टअप का नाम था एंडेवर करियर्स, और मैं और एंडेवर करियर्स हम दोनों ने साथ में शुरू करके we have both grown together. अब तो of course वो स्टार्टअप नहीं है, अब वो नेशनल ब्रांड है. Endeavor Careers is a national brand, so it has grown very strongly. I have grown very strongly as well, in the sense that if you ask me what I do, I am a business partner for certain geographies of Endeavor Careers. ठीक है, I teach, I train, mentor students. I teach for GDPI also. I train students for GDPI, recruitment ये वो. उसके बाद मैं उसके अलावा मैं कुछ वैल्यू सेशंस लेता हूँ. वैल्यू सेशंस आर इंडस्ट्री और एकेडमिक को मिक्स करके मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, प्री 91, पोस्ट 91, ये सारे लेक्चर्स में लेता हूँ. उसके अलावा मैं कुछ B स्कूल्स में एडहॉक फैकल्टी भी हूँ. So I teach subjects like marketing management, strategic management, corporate governance, etc. And I do some consulting work also with different companies. So this is what I do. Okay. So this is me. Endeavor में हम लोग जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम लोग करियर बिल्डिंग का काम करते हैं. We are most of you must have heard it, but still हम लोग CAT, GRE, CMAT, बाकी सारी एग्जाम्स CAT की, मतलब स्नैप, ZAT, ये सब का प्रिपरेशन कराते हैं. ठीक है, और उसके बाद GDPA का प्रिपरेशन करते हैं. सो ये सब कुछ हम लोग करते हैं. वी गेट स्टूडेंट्स इनटू गुड कॉलेजेस. दैट इज व्हाट वी डू. सो दिस वाज माय इंट्रोडक्शन. अब मैं अगले भाग पे चलता हूँ. मुझे कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, मैं थोड़ी देर बाद ले लूंगा बेटा. मैं फटाफट एक और टॉपिक उठा रहा हूँ
कि हमको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला तो आपके पास मौका है, ठीक है, टाइम है, और आपको पता नहीं है शायद, और ये आपके प्रोफेसर्स आपको बोलेंगे, दे विल अग्री विथ मी, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर पीआई के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे, कोई कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाओगे, या कोई एमबीए या बी स्कूल के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे, जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पहला वो क्या चेक करेंगे, जिंदगी में तुमने किया क्या है। करेक्ट, जिंदगी में तुमने सबसे बड़ा क्या किया है, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग यू डन इन योर लाइफ। इट्स योर बीबीए और व्हाटएवर, बीबीए बीकॉम जो भी पढ़ रहे हो आप, क्योंकि तुमने 2 या 3 या 4 साल उसको कंसिस्टेंटली किया है, तो सबसे बड़ी काम तो तुमने वही किया है। तो नेक्स्ट चीज वो क्या चेक करेंगे कि तुमने वो काम कैसा किया है, हाउ हैव यू डन इट, हाउ गुड हैव यू डन इट। यस, सो वो तुम्हारे मार्क्स चेक करेंगे कि तुमने कैसा किया है कि नहीं किया ढंग से। ओके, सो मार्क्स तो आपके मैटर करेंगे। रुक जाओ, मैं आगे भी बात करूंगा। सो कोई भी इंटरव्यू में जाओगे, आपका मार्क्स एकेडमिक्स चेक होगा। अगर आपके पास मार्क्स नहीं है तो आपको बोलेंगे कि तू तो 6 पॉइंटर है या 60% ही लाता है, तो यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, व्हाई शुड आई टेक यू। ये सवाल आएगा, तो तुम्हें उसको जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब में तुम ये बोल सकते हो कि यार सर मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं स्पोर्ट्स खेल रहा था, या मैंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तुम ये बोल के निकल तो नहीं सकते हो ना कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया, ऐसा तो बोल सकते हो क्या? मेन काम तो वही था। सो वो आंसर सही है, पर इनफ नहीं है कि मैं कुछ और कर रहा था। तुम्हें फिर भी अपने आप को प्रूव तो करना ही पड़ेगा। तो उसका बेस्ट आंसर क्या होता है पता है? मैं आपको सिखाऊंगा ये, अगर आप मेरे स्टूडेंट बनोगे तो आपको जीडीपीआई कैसे हैंडल करना है डिटेल में समझाऊंगा। बट मेन आंसर कि तेरा मार्क्स कम है तो क्या करना है, तो मेन आंसर क्या दोगे कि सर मेरे मार्क्स मत देखिए, मुझे आता है, मेरे को ये 2-3 सब्जेक्ट बहुत पसंद थे तो मैंने उस पर ध्यान दिया, बाकी सब में मेरे मार्क्स नहीं आए हैं। या मेरे मार्क्स मत देखिए सर, मुझे नॉलेज है, आप पूछिए 2-3 सब्जेक्ट्स, तो 2-3 सब्जेक्ट्स तुम्हें आने तो पड़ेंगे ना। आपको अपने को प्रूव करने के लिए कहीं तो एकेडमिक्स में घुसना ही पड़ेगा। आप पूरा हाथ खुला करके छोड़ नहीं सकते कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, जाने दो और मेरे को जॉब दे दो पर मुझे पूछो मत कुछ भी एकेडमिक्स का, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो पहला चीज है, आपको एकेडमिक्स पे कंट्रोल लेना है अगर, तो करंट 2 सब्जेक्ट्स और पिछले सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट उठा के आप प्रिपेयर कर लो। अभी टाइम है, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है? कुछ नहीं, दिन का 1 घंटा फिक्स करोगे ना, 1 या 1.5 घंटा की मुझे कॉलेज के अलावा, क्लासेस के अलावा या कुछ और के अलावा 1-1.5 घंटा मुझे पढ़ना है, तो भी तुम्हारे 2-3 सब्जेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे। सो सबसे पहला, द फर्स्ट पॉइंट आई एम सेइंग व्हिच यू माइट वांट टू नोट डाउन इज टेक कंट्रोल ऑफ योर एकेडमिक्स। थोड़ा सा, अपने को बहुत मार्क्स भी नहीं आए ना, 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर नहीं लाना है, अपने को 4 सब्जेक्ट ढंग से आते होंगे ना तो अपना काम हो गया है। उस चक्कर में वो 4 सब्जेक्ट्स की वजह से तुम्हारा पॉइंटर भी बढ़ेगा। एम आई राइट? ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट पे आता हूं। दिस इज द बेस्ट टाइम कि जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो अपनी हॉबी को होन कर लो, अपनी हॉबी को बेटर कर लो, ठीक है? किसी को अगर रीडिंग का शौक था बट छोड़ा हुआ है, 2 साल से कॉलेज में आया तब से पढ़ा नहीं मैंने ज्यादा, स्कूल में बहुत पढ़ा करता था मैं, तो करना अभी। कोई बोलेगा कि सर मैंने डांस छोड़ दिया, तो डांस करो ना अभी। म्यूजिक छोड़ दिया, म्यूजिक करो ना अभी, है ना? तो परस्यू योर हॉबी। सो द सेकंड थिंग दैट आई एम सजेस्टिंग इज अपनी हॉबी परस्यू करो। थर्ड, बहुत सारे ऑनलाइन ओपन कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ओपन कोर्सेज मतलब मैं जो बोला, एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, राइट, ऐसे कोई भी कोर्स आपको करने का शौक, कोई भी शौक हो। अब कोर्स कैसे किया, ये बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी है, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं। सर्टिफिकेट एंड में, सर्टिफिकेट और नॉलेज 2 चीज मिल रही हो ना तो कोर्स कर डालने का। जब आपको कोई पूछेगा बाद में इंटरव्यू में कि तूने कोविड-19 के उसमें क्या यूज किया, ये नया इंटरव्यू क्वेश्चन बनेगा कि तुमने वो 3 महीने में क्या किया था, तो तुम क्या जवाब दोगे कि सर मैंने ये कोर्स किया, मैंने ये हॉबी परस्यू की, 2-3 चीजें की, तो दिखेगा हाँ ये बंदा बैठा नहीं था घर पे, टाइम पास नहीं कर रहा था। और करना कितना है तुम्हें, राइट? सो द फर्स्ट थिंग आई विल रिपीट, फर्स्ट थिंग वाज एकेडमिक्स, सेकंड थिंग वाज हॉबी परस्यू करो स्ट्रांगली, थर्ड थिंग वाज ऑनलाइन कोर्सेज,
ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो स्टॉक मार्केट का कोर्स उठा ले, ठीक है। किसी को गिटार का शौक है तो गिटार उठा ले, उसके भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तुम सबको काम आने वाला है, तो एक्सेल सीख लो यार ऑनलाइन, ठीक है। तुम लोग जो यूज करते हो प्लस माइनस करने, उससे ज्यादा उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज है जो काम आएंगी आपको, और एमबीए करने जाओगे तो उसके बाद यूज भी करोगे उसको, तो सीख लो एक्सेल अभी, ठीक है। चौथा चीज इज रिसर्च। रिसर्च मतलब, अच्छा, इंडस्ट्री रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, स्पेशली अगर पब्लिश्ड रिसर्च हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट उठाते हैं किसी प्रोफेसर के अंडर में, टॉक टू योर प्रोफेसर्स अबाउट इट, और फिर किसी जर्नल में उसको पब्लिश कराने का ट्राई करो, उसी एंगल से एक अच्छा रिसर्च करो, ठीक है। पांचवा, जीके बिल्ड करो, जनरल नॉलेज, रीड अप, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हमारा एंडेवर में ऑनलाइन एक फ्री चैनल है, ठीक है, जिसमें जीके कैप्सूल करके वीडियोस आते हैं, हर महीने का करंट अफेयर्स और जीके आपको, आप वो देख लोगे, आधे घंटे का 15-20 मिनट का वीडियो, आपका जीके हो गया महीने भर का। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, जीके बिल्ड करो, जीके हर जगह काम आएगा। इंटरव्यूज में जब एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना, तो बाकी सारी बातें करनी पड़ेगी, तो वहां पे जीके काम आएगा आपको, ठीक है। ये 5 चीजें बोली मैंने। छठा, सिक्स्थ कहाँ गया, हाँ, फ्रीलांस असाइनमेंट्स। बहुत सारे बच्चे फ्रीलांस असाइनमेंट्स उठा सकते हैं, जॉब्स, कि आपने कुछ तो कमाया, एक आपको छोटा सा अमाउंट मिलेगा पॉकेट मनी जैसा, बट आपके पास कुछ तो किया है, उसका एक्सपीरियंस तो होगा। किसी को कंटेंट राइटिंग का शौक है, किसी को कोडिंग का शौक है, तो कर लो ऑनलाइन असाइनमेंट्स, आप मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, ठीक है। सो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा लो। ये तो बीबीए स्टूडेंट्स को वैसे भी करना चाहिए, इवन विद नॉन कोविड सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में, इंटर्नशिप और फ्रीलांस असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, फर्दर स्टडीज और फर्दर लाइफ का प्लान करो। ये सब तो शॉर्ट टर्म चीजें बोली मैंने। लॉन्ग टर्म क्या होगा कि आज से 5 साल बाद मेरे को कहां पहुंचना है, बिकॉज 5 साल बाद इकोनॉमी अच्छी होगी, 4 साल बाद। आप अगर अभी सेकंड थर्ड ईयर में हो, आप अभी कैट की तैयारी करते हो, साल भर बाद बी स्कूल में घुसते हो, 2 साल एमबीए करते हो, तो 3 साल बाद तो इकोनॉमी मस्त होगी ना यार। तो अगर अभी आपको 20-25 हजार की जॉब नहीं मिलने वाली है, तो उस तरह प्लान करो कि मुझे 3 साल बाद 60 हजार की जॉब मिले, 70 हजार की जॉब मिले कम से कम। I'll give you an idea, okay? See, for example, अगर आप आईवी लीग स्कूल्स में जाते हो ना, आईवी लीग मतलब IMABCL, जैसे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, तो आपको 19-20 लाख का, मैंने बोला, पैकेज एवरेज मिलता है। 19-20 लाख मतलब हाथ में कितना आता होगा? 1.6 और 1.7 लाख पर मंथ। महीने का 1.5 लाख से ज्यादा आप कमाना शुरू करते हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। I have students who are in IIM Ahmedabad, who passed out from IIM Ahmedabad. I am telling you this. MD, चलो वो नहीं मिला, IIM Ahmedabad नहीं मिला, MDI में गए। MDI में कितना पैकेज मिलेगा? मैंने बोला 15-16 लाख। 15-16 लाख मतलब भी 1.3-1.4 lakhs in hand। समझ में आ रही है बात? ओके, वहां नहीं गए, केजे सोमैया मुंबई या IMI दिल्ली जैसी कॉलेज में गए आप, या एग्जाम भुवनेश्वर, ऐसी कोई इस लेवल की कॉलेज में, राइट। तो आपको कितना मिलेगा? तो मैंने बोला 13 लाख के आसपास। 13 लाख मतलब भी 90,000, 85-90 हजार इन हैंड, 90,000 इन हैंड पर मंथ। वो भी नहीं मिला, ठीक है। निर्मा गए तो 9-10 लाख। 9-10 लाख मतलब कितना हुआ इन हैंड? एनी आइडिया? वो भी 70,000 इन हैंड हुआ, 65-78-75,000। मतलब आप वो कैपेबिलिटी रखते हो बेटा। मेरा एक स्टूडेंट, तुम बीबीए स्टूडेंट्स हो तो मैं, मोस्ट ऑफ यू, तो मैं बात करता हूँ आपको कि मेरा बीबीए के 2 स्टूडेंट, एक बीकॉम और एक बीबीए स्टूडेंट, 2 लास्ट ईयर बी स्कूल्स में गए थे। एक बंदा जो बीकॉम स्टूडेंट, सॉरी जो बीबीए स्टूडेंट था, आशीष मोटवानी, वेंट टू एमडीआई गुड़गांव। वो निकलते ही 1.4 लाख 1.3 लाख कमाएगा, कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है। मेरा दूसरा स्टूडेंट जो बीकॉम करके गया है, कुणाल गिडवानी, he went to SIBM पुणे, again a top college, right?
So he will also get out with a 15 lakh salary. वो भी सवा लाख जैसा तो कमा ही लेगा कम से कम. तो ये दोनों ही बच्चे बीकॉम बीबीए नॉर्मल कॉलेज से बीकॉम बीबीए करने के बाद मेहनत करके खाली कैट देके अच्छा स्कोर लाके they have gone to these two colleges, बीकॉम और बीबीए स्टूडेंट्स आप जैसे. तो अब मैं आपको समझाता हूं. मैं जो इनिशियली बोला था ना कि अपने हाथ लाइफ अपने हाथ में लो, अपने कंट्रोल में लो, उसका मतलब ये होता है. ऑलराइट, चलो आगे बोलता हूं. सो मैं क्विकली रिपीट 6 चीजें बोली मैंने. ओके, एकेडमिक्स को कंट्रोल में लो. अब ये पढ़ाई कर सकते हो कोविड सिचुएशन में, लॉकडाउन के सिचुएशन में. हॉबी परस्यू कर सकते हो, राइट. रिसर्च कर सकते हो, कोई भी फ्रीलांस असाइनमेंट्स उठा सकते हो, फिर ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, राइट. फिर जीके बिल्ड कर सकते हो. 6 चीजें. 7वां, आगे की पढ़ाई करना शुरू करो, एमबीए या व्हाटएवर यू वांट टू डू. ठीक है. 2-3 और चीजें हैं कि आपको थोड़ा स्टॉक मार्केट स्टडी करना है तो अभी तुम कर सकते हो. थोड़ा विदाउट मनी ऑल्सो यू कैन डू सम स्टडीज कि चल मैं कुछ स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ, समझते हैं कि क्या मैं जो जीके बिल्ड कर रहा हूँ कि मार्केट में ये न्यूज आया ये सेक्टर का, तो उससे स्टॉक मार्केट में कैसा फर्क पड़ा, क्यों पड़ा. फिर अपने एकेडमिक से समझा कि अच्छा ये चीज होती है तो ऐसा होता है, इकोनॉमी ऐसे वर्क करती है. तो आपको है ना एक समझ खड़ी हो जाएगी कि क्या चल रहा है दुनिया में. ठीक है. तो वो हो गई 8वीं चीज, स्टॉक मार्केट. और दूसरे मार्केट स्टडी करना है, घुसना नहीं है, स्टडी करना है. घुसना है तो अलग पेरेंट्स को पूछो. ठीक है. फिर 9th चीज क्या है, फिटनेस. ये टाइम है कि आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो. घर में बैठे हो, आपने शायद 2-3 महीने में बहुत कम सनलाइट में घुसे होंगे, निकले होंगे. ठीक है. तो विटामिन डी भी नहीं मिला होगा, आपका बोन्स भी वीक हो जाएगा. सो डू समथिंग, टेक केयर ऑफ योर फिटनेस ऑल्सो. एंड लास्ट थिंग इज लाइफ स्किल्स बिल्ड करो. कोई लाइफ स्किल्स मतलब कुछ नया सीखते हैं. कुछ लोग आजकल कुकिंग सीख रहे हैं, है ना. ऐसे कोई लाइफ स्किल सीखो जो आपको काम आएगी जिंदगी में. ठीक है. ये 10 चीज मैं सजेस्ट करता हूं आपको. यूज योर टाइम, राइट. सो मेरा ये पोर्शन भी बेटा खत्म हुआ. अब हम लोग बात को थोड़ा 5 मिनट में रैप अप करते हैं. ओके. फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूं एंड देन वी विल एंड द सेशन. ओके, क्विकली. सो आप लोग को, काफी लोगों को डाउट होगा कि एमबीए करना है सर, राइट. बिकॉज आप में से मुझे जो लगता है कि 70% 70% स्टूडेंट्स हु आर डूइंग बीबीए और बीकॉम टेक अप एमबीए ओनली और एटलीस्ट गिव द एग्जाम. ठीक है. सो मुझे सर नाम बहुत सुने मैंने, कैट, जैट, स्नैप, सीमैट, ये सब क्या है और मुझे क्या करना चाहिए. तो क्विकली मैं आपको वो समझा देता हूँ. ठीक है. ये सब एग्जाम्स अलग अलग एमबीए कॉलेजेस की ही एग्जाम है. अब कैट का एग्जांपल ले लो. तो कैट क्या होता है, आईआईएम्स के लिए होता है. कैट इज फॉर दी आईआईएम्स, राइट. फिर एक्सएलआरआई जैसी कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस होती हैं जो बोलती है मेरे को कैट नहीं लेना, मैं जैट कंडक्ट करूंगा. और बाकी सारी जो आईआईएम और एक्सएलआरआई के अलावा की कॉलेजेस है ना, वो बोलती है या तो हम कैट का स्कोर यूज करेंगे या जैट का स्कोर यूज करेंगे ताकि हम जीडीपीआई के लिए बच्चों को बुला पाए, राइट. तो दे यूज दिस कोर्स. तो कैट हो या जैट हो. फिर तीसरी आती है सिम्बायोसिस कॉलेजेस, आपने सुना होगा, सिम्बायोसिस ब्रांड, राइट. पुणे, नासिक और बेंगलोर में कॉलेजेस हैं उसकी. सो सिम्बायोसिस के अपने 14 से 17 अच्छी कॉलेजेस हैं एमबीए के लिए, अलग अलग. तो उनमें जाने के लिए आपको स्नैप देना पड़ेगा. फिर उसी तरह से आपने एनएमआईएमएस मुंबई सुना होगा, मीठीबाई, नरसिम्हन जी, ये सब सेम ग्रुप का है. ठीक है. सो एनएमआईएमएस जो है उसके लिए एनमैट लगता है एग्जाम. फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं. इन सब को मिला दो ना तो हम बोलते हैं उसको कैट प्रिपरेशन. जब कैट प्रिपरेशन की बात करते हैं हम इन सब की बात करते हैं. और जैसे मैंने बोला इन सब में पूछा क्या जाता है, कोई फाइनेंस, मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर नहीं पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है इसमें? पूछा जाता है मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी. मैथ्स कौन सा? नॉट हायर मैथ्स, नॉट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, वो सब नहीं. सिंपल मैथ्स जो अपने 8 to 10th में कवर हुआ था ना, जो सबने पढ़ा है, वो वाला मैथ्स. परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, फंक्शंस, ज्योमेट्री थोड़ा सा, राइट. सो वो सब, तो वो सब पूछा जाता है. तो मैथ्स. दूसरा इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी. तो इंग्लिश में क्या, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल लॉजिक, ऐसे 4 टॉपिक्स होते हैं. ठीक है. फिर तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग, एआर. सो एआर में क्या होता है, पजल्स और लॉजिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं. तो लॉजिकल थिंकिंग आपकी चेक होती है.
चौथा DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स दिया हुआ है और आपको उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, ये हो गया। सो क्वांट, मैथ्स, वर्बल, इंग्लिश, AR, रीजनिंग, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। और पांचवा थोड़ा सा जीके करंट अवेयरनेस आपको काम आएगा। सो कुछ एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करती है जीके करंट अवेयरनेस, जैसे कैट में नहीं होता जीके, पर बाकी सारी एग्जाम्स में, कैट और एनमेट के अलावा सारी एग्जाम्स में होता है। और कैट और एनमेट में भी GDPI के लिए जाओगे तो वहां जीके चाहिए ही, तो जीके एक डिफॉल्ट सब्जेक्ट हो गया आपका। सो इस तरह से आपके 5-6 चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। ऑलराइट, सो दिस इज अंडरस्टूड कि कैट में होता क्या है, और कैट, जैट, स्नैप, सब ये सबको कैट प्रिपरेशन ही बोलते हैं। ओके, सो मैंने शॉर्ट में सब कुछ ये बता दिया है। अब मैं क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, तो आई थिंक नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में उसको क्लोज करते हैं। राइट, किसी और को भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में लिख दीजिएगा, हम शुरू करते हैं। चलो, एकदम ऊपर से शुरू कर रहा हूं। आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, मेरा अगर वीडियो स्टक है तो कोई टेंशन नहीं, मैं चैट देख रहा हूं इसलिए स्टक हुआ है। राइट, सिद्धार्थ पूछ रहा है, सर आई एम 2 years now, second year now, so I shall go for MBA or CFA. What if I am preparing for CFA? बेटा CFA अपने आप में कोई फायदे वाला नहीं है, मतलब फायदे है, but CFA is a certification. It is not a course. It is not a degree. It is not a professional course like a CA or a CS. It is a certification. तो yes, आज CFA करके निकलेगा तो तेरे को 30-40 हजार का पगार तो मिल ही जाएगा। उसके ऊपर अगर तेरे को चाहिए तो MBA करना पड़ेगा। सो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं तेरे को समझाता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के साथ कैट की तैयारी करते हैं, MBA की कॉलेज में घुस रहे होते हैं ना जब, सो फॉर एग्जाम्पल तेरा कैट तो हो जाएगा नवंबर में, सेकंड ईयर में है तू, तो तेरा सेकंड ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर कैट 2021 के लिए तू तैयारी कर रहा है, तो साल भर कैट 2021 तक तैयार कर ले, नवंबर तक। नवंबर से तू CFA की प्रिपरेशन चालू कर, लेवल 1 की, CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन चालू कर। ठीक है, तो कैट हो गया, CFA लेवल 1 तेरे कॉलेज चालू होने तक, MBA चालू होने तक CFA लेवल 1 खत्म हो जाएगा, या फर्स्ट ईयर में। फिर फर्स्ट ईयर खत्म करके सेकंड ईयर में CFA लेवल 2 चालू कर, तो तेरा प्लेसमेंट आने तक या तो CFA लेवल 2 खत्म हो गया होगा या तू कर रहा होगा, तो तेरे को प्लेसमेंट में फायदा होगा कि मैं MBA तो हूं ही सर, और CFA भी कर रहा हूं। बट MBA के साथ CFA का कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू है ना, वो बढ़ जाता है। सिर्फ CFA का वैल्यू इतना नहीं होता है। राइट सिद्धार्थ, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन बेटा? समझ में आ गया तो यस बोलना, और कुछ और डाउट हो तो नीचे वापस क्वेश्चन लिख लेना। प्रांजुल का क्वेश्चन है, हमारा मैथ्स और LR बहुत वीक है। ओके, प्रिपरेशन करनी चाहिए, सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन करना अच्छे से चाहिए। ओके, क्योंकि MBA एंट्रेंस के लिए स्पीड चाहिए। BBA के बाद MBA करना था, बट एंट्रेंस की वजह से अटक रहा है। प्रांजुल, एक बात बताता हूँ बेटा, अगर तेरा एस्पिरेशन हाई था ना, अगर अच्छी कॉलेज में जाना है, तुम्हारा एस्पिरेशन हाई है, तो अच्छी जगह जाने के लिए ना तुम्हें अच्छा प्रिपरेशन और अच्छा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तुम कंपटीशन को फेस नहीं करके अच्छा नहीं कर लोगे। जहां अच्छा करने जाओगे वहां कंपटीशन होगी ही, तो कंपटीशन से डर के मत जियो। ठीक है, तुम्हारा मैथ्स वीक है, कोई टेंशन नहीं, उसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि साल भर निकाल के प्रिपेयर करो। जो लोग को लगता है कि सर मेरा तो अभी कैट 20 में मैं प्रिपेयर करूंगा तो मेरे पास 4 ही महीने, तो कोई टेंशन नहीं भाई, तू 1 साल ड्रॉप लेके 1 साल बाद कैट देना, 1 साल और दे दे। जो थर्ड ईयर में हो भाई, अगर अभी हो और तुम्हें लगता है कि सर कैट 20 तो बहुत क्लोज है, मैं क्या करूं, तो अगले साल दो। 1 साल अपनी जिंदगी का डाल ही सकते हो, कुछ गलत नहीं है उसमें। बट होगा, मेहनत करोगे ना तो होगा। और मैथ्स ऐसी चीज है, मैंने एग्जांपल क्यों दिया वो बीकॉम बीबीए स्टूडेंट वालों का, इसीलिए दिया कि बीकॉम बीबीए स्टूडेंट जिसका मैथ्स नहीं थोड़ा वीक होता है, वो लोग भी कर लेते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम डालना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, तुम और हम दोनों ही उसी चीज पे तो काम करेंगे ना यार। प्रांजुल, एम आई आंसरिंग योर क्वेश्चन बच्चे? सो अगर तू मेहनत कर सकती हो, अगर तेरा एस्पिरेशन बड़ा है ना, तो डोंट सेटल, डोंट कॉम्प्रोमाइज। हाँ, कॉम्प्रोमाइज कब करते हैं? जब सब कुछ ट्राई कर लिया और नहीं हो रहा है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तब भी कुछ लोग गिव अप नहीं मारते, पता है। और यही आपका एटीट्यूड आपको आगे ले जाएगा।
अगर ये एटीट्यूड नहीं होगा ना तो आगे नहीं जाओगे। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। ठीक है प्रांजु, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बच्चे। और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज फॉलो अप क्वेश्चन लिख देना नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत से एमबीए करोगे तो उसकी कितनी वैल्यू होगी? बेटा सूरत में कौन सी कॉलेज से करेंगे ना उस पर डिपेंड करता है। सूरत या अहमदाबाद या बॉम्बे ऐसा नहीं होता, कौन सी कॉलेज से करोगे उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब रितिका, I start preparing from now. रितिका तू अभी भी प्रिपेयर कर सकती है कैट 20 के लिए। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। मेहनत करने की तैयारी रखना कि मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टूट के मेहनत करेंगे। बट क्या 4 महीने 5 महीने तो मेहनत करनी है यार, कर लेंगे ना, अपनी तो घर की खेती है ना, मेहनत तो कर लेंगे। ठीक है, बाकी हो तो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। डिसेंट कॉलेजेस मिल ही जाएगी, सबको मिलती है, अनलेस कि आप मेहनत ना करो। ठीक है, एक। दूसरा, अगर फिर भी तुझे लगता है कि सर नहीं हो पाएगा मुझसे, बात कर लेना हमसे। ठीक है, हमसे बात कर लियो तो हम क्या करेंगे, वी विल गाइड यू कि तेरे केस में नेक्स्ट ईयर देना है क्या, 1 साल डालना है तो कैसे करना है। वी विल डिस्कस दोस थिंग्स। ओके, दोनों ही ऑप्शन है तेरे पास, इस साल भी दे सकते हो, अगले साल भी दे सकते हो। सो दैट वाज रितिका's क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओप्पो A5 का क्वेश्चन है, सर इन एकेडमिक ओनली 5th and 6th सेम मार्क्स इज इम्पोर्टेंट। ऐसा तू मान रहा है बेटा, ओनली 5th and 6th मार्क्स इज इम्पोर्टेंट। कंपनीज और कॉलेजेस के किसी भी तरह पूछ सकती है, लास्ट 2 भी पूछ सकती है, कोई ये भी बोल सकता है कि मुझे एग्रीगेट दो पूरे 6 सेमेस्टर का, तो कुछ भी हो सकता है। चिल मारना, जो हो गया उसको टेंशन मत ले, जो हो गया है वो हो गया है, जो तेरे हाथ में है उसको कंट्रोल में ले। राइट ओप्पो कोई नाम नहीं पता इसलिए अपने फोन के नाम से बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, भावेश द बिग गाय, एक्चुअली सर माय फैमिली बिजनेस सफर अ ह्यूज लॉस। ऑफ कोर्स यार, अभी तो सिचुएशन ही खराब चल रही है। सो आई वांट टू डू अ जॉब फॉर अ फ्यू इयर्स, विच जॉब इज सुटेबल? आई मीन BBA SEM 4। बेटा तू जॉब करेगा ना, देख मैं तेरे को 2 चीज समझाता हूँ। ठीक है, ये सबको काम आएगा भाई, सुन लो। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। हम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट करने में लॉन्ग टर्म लॉस करें ना, ये बिजनेस सेंस नहीं बनता है। मैं अभी का बेनिफिट करने के लिए, वो वाला है ना यार, मुझे एक मुर्गी है जो सोने का अंडे देती है हर रोज एक, तो उसको काट के मैं जो अंडे निकाल लूं, राइट, तो मुझे हर रोज नहीं मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट करने जाओगे तो लॉन्ग टर्म लॉस कर बैठोगे। मेरा थॉट उल्टा चलता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोच, भले शॉर्ट टर्म में तकलीफ हो तुझे। विच मीन्स कि अगर तू आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद, राइट, महीने के 1 लाख कमाएगा, वो ज्यादा अच्छा नहीं है? अभी तू 15-20 हजार की जॉब ले, उससे अच्छा। जस्ट अ थॉट। तुम अपनी कंडीशन ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, बट थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, राइट। अभी तो अपने, आई थिंक अपने पेरेंट्स से भी पूछेगा ना तो भी यही बोलेंगे कि यार पहले काम कर ले, पहले पढ़ ले, फिर काम करना, हम देख लेंगे। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो टाइम निकल जाता है। टाइम ये सब है ना, होता रहता है। मैंने भी बिजनेस में लॉसेस फेस किया, आई नो। ठीक है, बट ऐसे टाइम निकल जाते हैं और उसमें तुम अपना डैमेज करके मत बैठना। और ये सेल्फिश नहीं है, तू अगर अच्छा कमाएगा तो तेरे पेरेंट्स को ही काम आएगा, तेरे फैमिली को ही काम आएगा। लॉन्ग टर्म सोच, राइट बच्चे। ये भावेश का क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूं मैं। अरे निसर्ग आ गया, अभी तो अरेबियन सी में था ना भाई, साइक्लोन निसर्ग सूरत पहुंच गया। निसर्ग का क्वेश्चन है, आई एम इन द फाइनल स्टेज ऑफ CFP, so would it add to my MBA finance? Yes, if you do it from a good MBA college, it will definitely add बेटा। अगर तू अच्छा जगह से कॉलेज से MBA करता है तो उसमें CFP बहुत फायदा करेगा तुझे, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। ओके शुभम, whether we can start online digital marketing course? Yes beta, you can start an online course. I don't have a source right now, तो तेरे को ढूंढना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, I don't have the source right now. Hitesh sir is saying very informative session. Thank you so much sir. Thank you for the feedback sir. अर्पित बोल रहा है,
sir, I am coming in 3rd year now and I want to give GRE. I want to know about courses of GRE. So suggest me what should I do. Okay, GRE के लिए प्रिपरेशन होती है तो कर सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं आजकल। हम लोग भी देखो कैट GRE सब कुछ ही ऑनलाइन का कोर्सेज कर ही रहे हैं, लाइक क्लासरूम सेशन ही कर रहे हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं उसी तरह मैं पढ़ाता हूँ अपने क्लास में भी, ठीक है। सो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको वही कोर्स तो वही होगा, मैंने जो बोला ना, मैथ्स 8 to 10 का मैथ्स, वर्बल, राइट, जिसमें RC और वो कैब और वो पूछा जाएगा, और उस दोनों के अलावा आपको एक ऐसे राइटिंग का होगा, तो ये सब आपको ट्रेन किया जाता है। आई थिंक अंकुर सर आप जरा नोट करके इन स्टूडेंट को हेल्प कर सके ना तो ज्यादा अच्छा है। इफ यू कैन पुट योर ईमेल ID और योर फोन नंबर, राइट, these students can reach out and get their queries solved directly. Ankur sir, can you please confirm this? Okay. विरल रुक जाओ, मैं आपको, अंकुर सर शायद सुन नहीं पा रहे, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आपको है ना हमारे कांटेक्ट एक नंबर दे देता हूँ, उनको बोलता हूँ 1 ही सेकेंड रुक जाइए। I have 3-4 more questions to go, so just wait up. पहले मेरा कांटेक्ट ले लीजिए आप। Okay, so coming back, आप अंकुर सर विल राइट डाउन, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में। हाउ कैन आई कनेक्ट विथ यू? रितिका इज आस्किंग हाउ कैन आई कनेक्ट विथ यू फॉर काउंसलिंग। रितिका, वी आर शेयरिंग द नंबर एंड ईमेल ID। मैं अपना ईमेल ID भी लिख लेता हूँ इन केस यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। सो जिसको क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं मुझे मेल कर सकते हो, मैं अपना नंबर तो शेयर नहीं कर सकता हूँ आपसे। ये रहा मेरा ईमेल ID, आई हैव जस्ट सेंट ऑन चैट। Okay, please check it and note it down. Okay, so शुभम का क्वेश्चन हो गया, अर्पित का क्वेश्चन हो गया, विरल का क्वेश्चन लेते हैं। Can you tell something about banking sector? विरल, banking sector very interesting. So आप बैंक PO का जो हम एग्जाम देते थे ना, lot of people used to give bank PO exams, राइट, और वो ऑफिसर लेवल के लिए PSU बैंक्स में, बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए था। अभी क्या हो गया, बहुत सारे सीट्स फिलअप हो चुके हैं। सो अभी है ना बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स हो नहीं रहे हैं, और जिसका अच्छा स्कोर आ गया है उन लोग को भी पोस्टिंग नहीं मिल रही है। सो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स, 2 कॉलेजेस का नाम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख दे, ठीक है। NIBM पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, NIBM, और दूसरा SSBF, सिम्बायोसिस स्कूल फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये 2 जगह पर बैंक्स आती ही है, बहुत सारे B स्कूल्स में आती है, बट ये 2 कॉलेजेस में ना बैंकिंग और फाइनेंस में ही डील करते सेक्टर में। तो आप एक्चुअली वहां से मास्टर्स भी कर सकते हो, MBA इन बैंकिंग, एंड आपको बैंक्स ले भी लेंगी, तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन। इन दोनों के लिए आपको घुसने के लिए इसमें आपको कैट और स्नैप देना पड़ेगा। NIBM के लिए कैट और SSBF के लिए स्नैप, राइट, ये 2 एग्जाम देनी पड़ेगी, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये हो गया बैंकिंग सेक्टर के बारे में। Coming to the next one, OnePlus 7 Pro is telling me I am a second year BBA student interested in import export business. Don't know much about it. But अगर पता नहीं है और बिजनेस में घुसना है ना, तो MBA करके अच्छी एक ऐसी कंपनी में जॉब लो जो आपको करना है, तो आपको उस जॉब की निटी-ग्रिटी समझ में आएगी, उस इंडस्ट्री की निटी-ग्रिटी समझ में आएगी, so you can start a business accordingly. So I would suggest for you that you do an MBA or you do a job in a export import company, right? So that would help you. OnePlus 7 Pro. Next question, sir, can you please tell me something about foreign studies? फॉरेन स्टडीज बेटा आपको आगे MBA करना है, या आप MS इन फाइनेंस, MS इन इकोनॉमिक्स, ऐसा सब कर सकते हो, या MBA कर सकते हो, या MIM करके कोर्स है, राइट। MIM इज मास्टर्स इन मैनेजमेंट। तो इसके लिए आपको GRE देना पड़ेगा। MIM करने के लिए
which is the best option for you as a 3-year course, आपको GRE देना पड़ेगा. GRE is an entrance exam and उसका तैयारी करके GRE TOEFL देके आप जा सकते हो. उसमें हम हेल्प कर सकते हैं. ठीक है? So this was whose question? This was Kuvarji's question. Right? How worthy is Symbiosis Indore? Nisarg, not so much beta. Symbiosis brand अच्छा है, but इंदौर की कैंपस नया है, तो Symbiosis इंदौर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा. ठीक है? So पहले तो Symbiosis इंदौर करके कॉलेज नहीं है. Symbiosis की अलग अलग कॉलेज है, जैसे SIBM पुणे, SEMHRD, SIBM बैंगलोर, SIIB, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस हैं. हाँ, SUAS not so much. ठीक है? Not so much. उसके बाद निसर्ग के बाद नमन की बात करते हैं. सर 3rd ईयर खत्म होने वाला है एंड मैंने MBA के साथ साथ कुछ जॉब भी करना चाहता हूँ. सो व्हाट डू यू सजेस्ट? बेटा पहले तो ना MBA के साथ जॉब मत करना. MBA फुल टाइम करना, MBA अच्छी कॉलेज से करना, और अगर अच्छी कॉलेज से MBA करोगे तो तुम्हें 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा जॉब करने के लिए. ठीक है? तो MBA के साथ जॉब करना मत, उसके साथ प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप्स करो, वो आपके कोर्स का पार्ट होगा. ठीक है? अगर अच्छी कॉलेज में गए और अच्छा समर इंटर्नशिप मिला तो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का महीने का स्टाइपेंड भी मिलता है कई बार. तो ट्राई करके अच्छी कॉलेज में जाए. ठीक है? सो डू दैट. और उसके साथ अगर फ्रीलांस कुछ काम करना चाहता है ऑनलाइन या ऐसा कुछ तो कर ही सकता है. ठीक है? बट फोकस ऑन गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज फर्स्ट. और गुड कॉलेज में जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा तेरे को जॉब बहुत करने का. ठीक है? सो दैट वाज निसर्ग नहीं, किसका? नमन's question. Nisarg Dalal, because they have specialized banking, finance services and insurance courses. Yes, बच्चे. Okay, Naman has done finance in BBA. अंकुर सर ने नीचे फोन नंबर डाला है बेटा, सूरत सेंटर नंबर का, राइट? और मैंने अपना ईमेल आईडी भी डाला है, so you can use that. Okay. Khushali asking, last question that has come is Khushali, can you tell us about MBA in international business? What is the scope? The scope is beautiful beta. MBA in international business जैसे IIFT एक कॉलेज है फॉरेन ट्रेड का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट? दूसरा आपके पुणे में SIIB है, इंटरनेशनल बिजनेस. देन MDI में एक IM का कोर्स है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, सॉरी, राइट? सो ये सारे कोर्सेज आर वेरी गुड, राइट? एंड इंटरनेशनल बिजनेस, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो या इंडिया की कंपनीज डूइंग बिजनेस आउटसाइड इंडिया, राइट? आइदर वे इट इज अ ब्यूटीफुल स्कोप. So but you'll have to study hard, prepare for CAT and get good score to get into such colleges. And अगर देसी कॉलेजेस इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स दे रही है ना, तो उसका कोई मतलब ज्यादा नहीं है. मतलब है, ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज वहां भी हायरिंग तो होती है, राइट? बट कर ही रहे हो ट्राई, तो फिर ट्राई फॉर अ नेशनल कॉलेज, राइट? सो आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. नहीं, एक और आ गया, सॉरी, ले ही लेता हूँ. ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा. सर वेयर कैन वी गेट फ्रीलांस असाइनमेंट? बेटा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले तो क्या फ्रीलांस असाइनमेंट करना है. सोर्सेज बहुत सारे, तो इंटरनेट पे सर्च करेगा, मिल जाएगा. क्या करना है, किस चीज में करना है, पहले ये सोच ले, फिर सोर्सेज ढूंढ. ओके, सो दैट्स अबाउट इट. आई थिंक आई क्लोज विद दिस क्वेश्चन. खुशहाली, थैंक यू. बहुत सारे बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं. यू आर वेलकम गाइस, यू आर वेलकम. आई थिंक आई एम डन. आज का आपको फायदा होना चाहिए, ठीक है? फायदा उठाओ. ये 1.5 घंटा आपने स्पेंड किया है, मैंने भी स्पेंड किया है, प्रतीक सर और जयेश सर और सबने इन्वेस्ट किया है, राइट? सो मेक यूज ऑफ इट. विद दिस, थैंक यू सो मच गाइस. आई होप you've learned. I wish you all the best. Stay safe, stay locked in. I will take your, Pratik sir, I'll hand it over to you. Definitely, sir. Thank you very much, Sajil sir. It was definitely a very good session. Seeing the question asked by students, I think you have more than enlightened us, and definitely students have got benefited. Though it was a challenging time, this lockdown, but then we understand that there is a opportunity in every challenges. The best part, I think, we could make out from this lockdown period is that it has definitely increased importance of self-learning. People have realized that self-learning is the most important thing. And people have started introspecting themselves. These 3 months, people have realized what they are, what they can do,
and more important, their interest areas and everything, because so many things are happening all around us, so many webinars, seminars, and everything. Smart people have attended, and you can learn at least something from everything. So I Right, sir. hope every participants have got benefited from this session. They have done some value addition throughout this 3 months time, so that they can make them ready for the future challenges. I would like to thank you all the participants for your patient listening, and thank you very much for asking relevant questions, making this seminar very successful. I understand few of the participants are asking about feedback and all the things. This all will be shared in your WhatsApp groups and certificates and everything. Sajal sir, from bottom of my heart, I would like to thank you, and Thank you, sir. big thank you for Ankur sir, who hosted the session and make it a possible thing. So I would like to end my words with this. Stay safe, all of you, and we'll once again meet for a session. Thank you, sir, and thank you, Endeavor.